فلسطین پر 11 روز آگ برسانے کے بعد جنگ بندی۔ دہشت گرد اسرائیل نے آج صبح 4 بجے غزہ پر وحشیانہ حملے بند کر دیے۔ غزہ کو کھنڈر بنانے کے بعد ہی بمباری روکی۔ جنگ بندی میں مصر نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا جنگ بندی کا خیر مقدم، لیکن اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان کا بھی سیز فائر کا خیر مقدم۔ سفاک اسرائیل نے فضائی حملوں سے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ غزہ میں ہر طرف سوگ ہی سوگ۔ 243 فلسطینیوں نے اپنے وطن کے لیے قربانی دی۔ 1900 سے زائد زخمی ہوئے، 65 معصوم بچے اور 39 خواتین اسرائیلی جنگی جنون کی بھینٹ چڑھے۔ فلسطینیوں کی خوشی اسرائیل کو برداشت نہ ہوئی۔ جنگ بندی کے باوجود مسجد اقصیٰ میں ایک بار پھر اسرائیلی فوج داخل، آنسو گیس کی شیلنگ، ربڑ کی گولیاں بھی برسائی، فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فورسز کی کارروائی کی وجہ سے مسجد کے صحن میں بھگدڑ مچ گئی، جس سے کئی فلسطینی زخمی ہو گئے۔ جمعے کی نماز کے بعد فلسطینی جنگ بندی کی خوشی میں مسجد اقصیٰ کے صحن میں جمع ہوئے، مٹھائیاں تقسیم کی۔ اسرائیل کی دہشت گردی بند ہونے کے اعلان پر ہزاروں فلسطینی غزہ کی سڑکوں پر بھی نکلے، کئی مقامات پر آتش بازی بھی کی گئی۔ پہلی بار مغرب میں اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ لگ رہا ہے فلسطین کے بارے دنیا کا موقف تبدیل ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یوم یکجہتی فلسطین پر پیغام، کہا ماضی میں مغربی میڈیا اسرائیل کے خلاف نہیں بولتا تھا، سوشل میڈیا کی طاقت سے دنیا میں عوامی رائے تبدیل ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں کو شہید کیا، ان سے بہت ناانصافی ہو رہی ہے۔ جب سے اسرائیل بنا، پاکستان کا ایک ہی موقف رہا ہے، ایک دن آئے گا جب فلسطینیوں کو ان کا حق ملے گا۔ اسرائیلی جارحیت پر مسلم ممالک کے سربراہوں سے بات کی۔ شاہ محمود قریشی نے بھی جنرل اسمبلی میں بھرپور آواز اٹھائی۔ سیاستدان بھی فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے یک زبان۔ قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن فلسطین کے معاملے پر متحد۔ اسرائیل کے خلاف قومی اسمبلی کی قرارداد اقوام متحدہ کے آفس میں پیش۔ قرارداد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے پیش کی۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مسجد الاقصیٰ میں بربریت کی گئی، ایسے غمناک مناظر پہلے نہیں دیکھے تھے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا پاکستان کا بچہ بچہ کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بولے مسلم امہ کے سربراہان کی خاموشی پر تشویش ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ریلی سے خطاب میں کہا اسرائیل سے فلسطین کو آزاد کرائیں گے۔ قوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملک بھر میں یوم یکجہتی بھرپور انداز سے منایا گیا۔ شہر شہر ریلیاں، مظاہرے، اسرائیلی مظالم کے خلاف فلک شگاف نعرے۔ نماز جمعہ کے بعد شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ لاہور، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان سمیت کئی شہروں میں پاکستانی سڑکوں پر نکلے۔ اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجانی اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے ریلی میں شرکت کی۔ کراچی میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج، اسرائیلی پرچم نذر آتش کیا گیا۔ سندھ اور پنجاب اسمبلی میں بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے کہا فلسطین اور کشمیریوں کا مقدمہ عالمی سطح پر لڑنا ہوگا۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا پاکستان نے سفارتی محاذ پر فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیا۔ اجلاس کے بعد اراکین اسمبلی نے ہال کے باہر بھی فلسطینی پرچم اٹھا کر مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف قاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا تمام اراکین پنجاب اسمبلی اپنی تنخواہ فلسطینی بھائیوں کی امداد کے لیے ریلیف فنڈ میں جمع کروائیں گے۔ سندھ اسمبلی کا بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے۔
वज़ीर आला पंजाब से तरीन ग्रुप की मुलाकात काम कर गई। तरीन ग्रुप का वज़ीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तरीन ग्रुप के वफ़द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उस्मान बुज़दार की तहफ़्फ़ुज़ात के इज़ाले की यकीन दहानी, कहा मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। रुकने पंजाब असम्बली नौमान लंगड़ियाल ने कहा कि पार्टी सतह पर जो मसाइल थे वो हल हो गए। गिले शिकवे सुनने के बाद वज़ीर आला ने मसाइल हल करने की हिदायत की। यकीन है वज़ीर आज़म नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। सईद अकबर नवानी ने कहा इंक्वायरी रिपोर्ट अगर खिलाफ भी आई तो तस्लीम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब और तरीन ग्रुप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। तरीन ग्रुप के तमाम अरकान को तरक्याती फंड्स मिलेंगे। ब्यूरोक्रेसी तरीन ग्रुप के तमाम जायज़ मसाइल हल करेगी। तरीन ग्रुप बजट मंजूर करवाने समेत तमाम हुकूमती इक़दामात को सपोर्ट करेगा। तरीन ग्रुप टॉक शोज़ में कोई मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं करेगा, पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करेगा। बड़ों पर हाथ ना डालने की वजह से नैब करप्शन पर काबू पाने में नाकाम है। मुल्क में सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ा जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा करप्शन के खिलाफ भी जिहाद लड़ रहे हैं। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा तरक्की मुमकिन नहीं। चीन ने कई लोगों को करप्शन पर सख्त सजाएं दी। वज़ीर आज़म ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया। मजीद बोले सी पैक गेम चेंजर मंसूबा है। ज़राई शोबे में भी चीन से मदद ले रहे हैं। मुल्क के लिए क्लीन एनर्जी बहुत जरूरी है। दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां लगाने के अलावा इमरान खान अपना कोई एक कारनामा बताएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीटीआई हुकूमत पर तनकीद, कहा इमरान खान इल्जामात, दावों, वादों और यू टर्न लेने के अलावा अब तक कुछ नहीं कर सके। मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान का सामना कर रहा है। इमरान खान अपोजिशन पर इल्जामात लगाने में मसरूफ हैं। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी और दीगर से 14 रेफरेंसेस में 23 अरब 85 करोड़ की रिकवरी। नैब एलामिया के मुताबिक नारोवार स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस भी दायर। नैब का कहना है कि एहसन इकबाल ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। प्रोजेक्ट में तोसी करके लागत 3 करोड़ 47 लाख से 2 अरब 99 करोड़ रुपए तक ले गए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा नैब एहतसाब सब के लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरज़्म है। अमन दुश्मनों का चमन में फिर बुज़दिलाना वार। साजिद महमद रोड पर धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 14 से ज़ायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका JUI नजरियाती के रहनुमा कादिर लूनी की गाड़ी के करीब हुआ। कादिर लूनी समेत 6 जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बम धमाका यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली के करीब हुआ। बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। 4 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की चमन धमाके की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुल्क में कल से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगेगी। सिंध में कारोबार के लिए हफ्तावार 2 तातीलात का शेड्यूल फिर तब्दील। अब जुमा और इतवार को तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते को कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखी जा सकेंगी। मुल्क में एक रोज़ में मजीद 102 अफराद चल बसे। 24 घंटों के दौरान 3070 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पंजाब हुकूमत का कम कोरोना केसेस पर 16 अजला में 24 मई से तमाम स्कूल खोलने का फैसला। स्कूल 50% हाजिरी के साथ हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और मुश्किल, रोटी और नान के बाद आटा भी महंगा। पंजाब में रिकॉर्ड गंदम के बावजूद गंदम और आटे की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 80 रुपए का इजाफा। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1080 रुपए तक जा पहुंची। रावलपिंडी में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 रुपए तक जा पहुंची। पंजाब के ओपन मार्केट में गंदम की कीमत फी मन 200 रुपए बढ़ गई। आटे की कीमत बढ़ने पर शहरी लाल पीले हो गए।
कराची में खूनखार शेर रखने का असल मुल्जिम ताहाल आज़ाद, कानून की गिरफ्त में ना आ सका। मुल्जिम उसामा शेर को लेकर फरार। शेर के बच्चे पर हमले के मामले पर 2 अफराद हवालात में बंद। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक उसामा नामी शख्स शेरों की खरीदो फरोख्त का काम करता है। उसामा का भाई साथ शेर को लेकर दोस्त हमीद के घर लाया। 14 मई को शेर ने अचानक हमला करके बच्चे को जख्मी कर दिया था। इतराफ में खड़े अफराद ने बमुश्किल शेर को पकड़ा और बच्चे को छुड़वाया। सिंध हाई कोर्ट का सरकारी पीएचडी होल्डर्स को माहाना 25,000 रुपये अलाउंस देने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को 15 दिन में समरी वज़ीर आला सिंध को इरसाल करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, किसी महकमे के पीएचडी होल्डर्स के साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। एक्सप्रेस की खबर पर एक्शन। एफबीआर ने मोबाइल फोन्स पर कस्टम ड्यूटी में इजाफे में गलती तस्लीम कर ली। एफबीआर के मुताबिक सिस्टम में एक शिक दुरुस्त करते हुए गलती से कस्टम ड्यूटी बढ़ गई थी, जिसे ठीक कर रहे हैं। इजाफी कस्टम ड्यूटी अदा करने वालों को रकम वापस की जाएगी। पासपोर्ट पर अब 5 की बजाय 1 मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड होगा। कस्टम ड्यूटी 31,520 रुपये ही बरकरार रहेगी। पाकिस्तान रेलवे को 1 खरब 19 अरब का रिकॉर्ड खसारा। रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। कोरोना के सबब ऑपरेशन में खसारे में इजाफे के सबब 36 ट्रेनें बंद कर दी गईं। 15 ट्रेनें निजी कंपनीज को ठेके पर देने का फैसला किया गया। वफाकी सूबाई इदारे PSO समेत निजी कंपनियां पाकिस्तान रेलवे की 9 अरब 89 करोड़ की नादहिंदा निकली। कौमी असम्बली में हायर एजुकेशन कमीशन के 2 तरमीमी ऑर्डिनेंस भी पेश। पाकिस्तानी अवाम और एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान अमेज़ोन सेलर लिस्ट में शामिल। अमेज़ोन की तस्दीक। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ट्वीट में लिखा, अमेज़ोन सेलर लिस्ट में शामिल होना हमारी ई-कॉमर्स के लिए एक बड़ी कामयाबी है। भारत को मकबूजा कश्मीर में मजालिम बंद करना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का जापान में फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। अफगानिस्तान के मसले का हल जंग नहीं, भारत समेत तमाम हमसायों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर में मौलवी मोहम्मद फारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लून की बरसी। वादी में मुकम्मल हड़ताल रही। एहतजाजी मुजाहरे को रोकने के लिए भारतीय फोर्सेस ने वादी भर में कर्फ्यू लगाए रखा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को 70 साल मुकम्मल। यादगारी टिकट जारी। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने तकरीब से खिताब में कहा, कश्मीर के इशू पर हर फोरम पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन और पाकिस्तान भाई हैं, हमारे ताल्लुकात रोल मॉडल हैं। पाक फ़ज़ाइया का एक और एजाज़। मज़ीद 3 JF-17 थंडर तैयारे नाइजीरियन फ़ज़ाइया के हवाले। पाक फ़ज़ाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल सैयद नोमान अली नाइजीरिया और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अहम संग मील की हैसियत रखती है। भारतीय फजाइया के तैयारे उड़ते ताबूत। भारतीय फजाइया का एक और MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे का पायलट स्क्वाड्रन लीडर हलाक हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा भारतीय पंजाब के इलाके मोगा के करीब पेश आया। मुल्क भर में आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। रैलियों और मुजाहरों में फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों से इजहार यकजहती किया गया। मुजाहिरीन ने इसराइल की जाहिरियत के खिलाफ नारेबाजी की और अपने गुस्से का इजहार किया। यौम यकजहती फ़लस्तीन मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत शहर शहर रैलियां निकाली गईं।
शुरका ने दुनिया से फलस्तीन पर इसराइल के गासिबाना कब्जे को खत्म कराने का मुतालबा किया। रहते फलस्तीन ना आज अकेले हैं, ना कल अकेले हैं, ना हम उनको अकेला छोड़ सकते हैं। ये किस तरह की बेहिसी है? अब तक कितने लोग क्यों शहीद हो चुके हैं? क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिया गया? उनका किरदार ये होना चाहिए था कि वो इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करके इस्लामी सहराई कॉन्फ्रेंस बनाते। मुआवन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने लिबर्टी मार्केट लाहौर में होने वाले मुजाहिरे में शिरकत की। पाकिस्तानी जो है वो यक ज़बान है, हम आवाज़ है कि इजराइल के जो मुसलसल नहत्ते फलस्तीनियों के ऊपर किए गए हमले हैं उनकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी की जानिब से मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने इसराइल की जारहियत के खिलाफ नारेबाजी की। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि फौरन से एक्शन ले ताकि हमारे फलस्तीनी बहन भाई जो हैं वो आज़ाद हो जाएं। ये इंसानियत का मसला भी है, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। और आज पूरी क्या कहना चाहिए, इंसानियत इस बात पे रो भी रही है और एहतजाज भी कर रही है जो इसराइल ने वहाँ पर जुल्म का बाजार गर्म कर रखा। जो मुजालिम हो रहे हैं फ़लस्तीन के, उनके साथ यकजहती दिखाने के लिए और अपनी मुस्लिम उम्मा को जगाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। दूसरी जानिब कराची बार के वकला ने इसराइली जारहियत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज में वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फलस्तीन में इसराइल ने जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म रखा है कर रखा है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बच्चों, औरतों और स्कूलों में और मस्जिदों में और हर जगह पे जो कुछ हो रहा है ये वॉर क्राइम। हैदराबाद में भी सियासी और मजहबी जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और मुजाहिरे किए गए। उधर सूबा बलोचिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों चमन, डेरा बुगटी, नोशकी, कल्लाद, कोहलू और दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। यौम यकजहती फ़लस्तीन पर इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठीं। हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने जुलूस और रैलियां निकाली। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कौमी असम्बली की मुतफ़िक़ा करारदाद को याददाश्त की सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा ऑफिस में पेश किया गया। मज़ीद जानेंगे वक्कास अहमद से। पूरे मुल्क की तरह इस्लामाबाद में भी इसराइली मुजालिम के खिलाफ यौम यकजहती फ़लस्तीन भरपूर तरीके से मनाया गया। हुकूमती और अपोजिशन वफद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पहुंचा। कौमी असम्बली से मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास की गई करारदाद यादाश्त की सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे जूलियस हर्नस को पेश की गई। अक़वाम मुत्तहिदा और वहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी काउंसिल है कि जितनी जल्दी आप इन करारदादों के ऊपर अमल करवाएंगे उतनी जल्दी दुनिया में जो खुदा न खास्ता जंग के जो दोबारा साए बादल मंडलाने शुरू हो गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लाल हवेली से निकाली गई रैली से खिताब में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती का दिन मनाने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर हम साबित करेंगे कि हम गुलाम रसूल हैं और गुलाम रसूल पे फर्ज है कि वो फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए हर वक्त तैयार रहें। जमात इस्लामी की जानिब से अल-कुद्स मिलियन मार्च किया गया। मुझे अफसोस है कि इस लम्हे भी अमरीकियों ने और बरतानिया ने मिलियन डॉलर का असलहा इसराइल को दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट ने इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मार्च किया। साथी रिपोर्टर इमरान असगर के साथ वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात, उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात हुई, उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप के वफ़द ने वज़ीर आला को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उस्मान बुज़दार की इज़ाले की यकीन दहानी। हमारी पीटीआई पार्टी में जो इस तरह के मसाइल थे वो अल्लाह के फजलो करम से आज हल हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से तहरीक इंसाफ तरीन ग्रुप की मुलाकात करने वालों में सईद अकबर नवानी, नुमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा, नज़ीर चौहान, जवार वड़ाइच, उमर आफ्ताब और दीगर शामिल थे।
मुलाकात में शिकवे शिकायतें हुई। अरकान ने उस्मान बुज़दार को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आला की मुस्बत यकीन दहानी के बाद तरीन ग्रुप ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। जो हमने इंक्वायरी के लिए कहा, अगर उस रिपोर्ट वो हमारे खिलाफ आएगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अदालत का फैसला जो भी आएगा हमें वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हम यही चाहते थे कि इंक्वायरी फेयर हो। वज़ीर आला पंजाब से ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में तरीन ग्रुप ने बजट मंजूर करवाने और पार्टी डिसिप्लिन पर अमल की यकीन दहानी करवाई। गिले शिकवों की रोशनी में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो अचीवमेंट वो ये थी कि आज हमारा सीएम पंजाब ने एक डीएस लगा दिया है। वो डीएस हमारे जितने भी पंजाब ज़िला के लोग हैं, जंगीर खान तरीन साहब के ग्रुप के, उनके तमाम मसाइल को हल करवाएगा।